Next, we'll do about journal entries of GST. That day we discussed the meaning of GST and few of its entries. Now we'll discuss the remaining entries that are first हमने entry कौन सी करी थी GST की? Sir, goods purchase. Goods purchase की. The logic behind GST with purchase of goods. Entry है purchase account debit to cash. I am assuming that the goods have been purchased on cash. So when we'll purchase the goods on cash, the account will debited will be purchase account and to cash, assuming that the goods have been purchased on cash. And when we purchase the goods, input GST will be there or output GST will be there. Which GST will be there, input or output? Input. Input GST. And assuming that intrastate purchase is there, what kind of GST account will you open? If intrastate GST. Input IGST. CGST. SGST. CGST. Intrastate means within the state. When within the state purchase sale is there, in that case, CGST and SGST account is open. If suppose intrastate is there, then from Punjab we are selling the goods to any other state, say Rajasthan or Kerala or West Bengal, then in that case IGST will be opened. If we are purchasing goods within the state, intrastate, say from Phagwara I am purchasing the goods from Jalandhar. My business is in Hoshiarpur, I am purchasing goods from Nakotar, suppose from Ludhiana, from Amritsar, within the state of Punjab. That is intrastate purchase and sale of goods. In that case, CGST and SGST will be there. ये पॉइंट हम कर चुके थे. यहाँ पे एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो तब हो रही जब जीएसटी नहीं हम लगा रहे थे. अगर हम जीएसटी लगाएं साथ में तो हम एक इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे और साथ में इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे. ऐसी वाली सिंपल एंट्रीज हमने पहले कर ली थी. सपोज परचेज की वैल्यू है 1 लाख रुपीज एंड 12% इज रेट ऑफ जीएसटी. The rate of GST is 12% and we have to apply CGST and SGST. So we'll mark 6% for CGST and 6% for SGST. हमें खुद ही ये हाफ करना पड़ेगा. 1 लाख का 12%, 12,000 means 6,000 CGST and 6,000 SGST. The total cash we have paid is rupees 1 lakh 12,000. Goods purchased 1 lakh, cash paid 1 lakh 12,000. Out of this 12,000 is for GST and 6,000 CGST, 6,000 SGST. Bifurcation has been done. This bifurcation we have to do ourselves. वहाँ पे आपको रेट बताया गया वो टोटल 12% है. अगर वो इंट्रास्टेट सेल है within the state of Punjab or we can say within same state the goods have been sold, in that case आप खुद करना पड़ेगा. अगर सपोज ये इंटरस्टेट सेल होती तो इसकी जगह पे हम कौन सा अकाउंट बोलते? इनपुट IGST और वो 12,000 के साथ होते, वहां पे आप नहीं करना. When IGST is to be calculated, then no need to make the amount 50% because we have only one account in that case. Intrastate sale में दो अकाउंट है हमारे पास, CGST भी और SGST भी, इसलिए हम हाफ कर लें. IGST में हाफ नहीं करते. ये उस दिन हमने एंट्री कर ली थी. इसके अलावा हमने सेल की एंट्री भी कर ली थी और एक्सपेंस पेड की एंट्री भी कर ली थी और इनकम रिसीव्ड की भी कर ली थी. लॉजिक इज कि व्हेन वी परचेज द गुड्स और व्हेन वी पे द एक्सपेंस वी ओपन इनपुट जीएसटी अकाउंट एंड वी डेबिट दैट आल्सो बिकॉज़ हमारे लिए वो भी एक्सपेंस ही है. एंड व्हेन वी सेल द गुड्स और व्हेन वी रिसीव एनी इनकम देन वी ओपन आउटपुट जीएसटी अकाउंट और उसको हम क्रेडिट करते हैं. डन. इतनी एंट्रीज जो थी वो हमने कर ली थी. नेक्स्ट एंट्रीज करिए. नेक्स्ट लिखिए एंट्री. फॉर परचेज ऑफ एसेट. फॉर परचेज ऑफ एसेट who will try the entry? लॉजिक वही है जो पहले था. जीएसटी के साथ तो लॉजिक नहीं चेंज हो गया है. जर्नल एंट्री जो हम पहले कर रहे थे वही है. हमने सिर्फ बीच में जीएसटी इंसर्ट करना है और ये देखना है कि वो इंट्रास्टेट है या इनपुट आएगा या आउटपुट आएगा, डेबिट होगा या क्रेडिट. हिमानी
Sir, asset account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to cash. यस, एसेट अकाउंट डेबिट, ये परचेज की जगह पे हम एसेट अकाउंट, सपोज मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी अकाउंट खोल देंगे. डिफरेंस विल बी दिस ओनली बिकॉज परचेज वर्ड इज यूज्ड फॉर गुड्स exclusively goods purchase, and when we purchase the asset we don't use the word purchase, we open the account named asset account. And input CGST SGST will remain there because हमने परचेज किया है तो हमारा एक्सपेंस होगा. टू कैश, अज्यूमिंग कि वो कैश पे पे की गई है. अगर वो चेक से पे करते तो वहां पे बैंक आ जाता, अगर वो क्रेडिट पे परचेज करते तो वहां पे क्रेडिट वर्ड आ जाता. वो लॉजिक सेम है. डिफरेंस क्या आया है, परचेज की जगह पे मशीनरी अकाउंट खोल दिया है बिकॉज परचेज वर्ड हम एसेट के लिए यूज नहीं करते हैं. डन. देन इज नेक्स्ट एंट्री इज फॉर परचेज रिटर्न्स. परचेज रिटर्न्स, कौन करेगा एंट्री फॉर परचेज रिटर्न्स? अदिति. Sir, अगर कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST टू यस, SGST. ठीक है अदिति, बिल्कुल ठीक. जो एंट्री परचेज रिटर्न की है वो होती क्या है? सिंपल एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही एंट्री होती है. अज्यूमिंग दैट द परचेजेस वर मेड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न यही होती है. परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और परचेज रिटर्न की होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. फाइन. अब यहाँ पे साथ में जीएसटी भी क्रेडिट किया जाएगा बिकॉज जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो जीएसटी हम पे करते हैं, और जब हम गुड्स परचेज रिटर्न कर देते हैं तो जीएसटी भी रिवर्स होगा. ये नहीं कि हम जीएसटी पे कर दिया तो जो गुड्स वापस करेंगे वो जीएसटी के साथ ही होंगी, वो जीएसटी के साथ ही होंगी. मीन हमें जीएसटी का भी रिवर्स मिलेगा. अगर मैंने गुड्स परचेज करी थी सपोज 100 रुपए की, उस पर मैंने 10 रुपए अगर जीएसटी पे कर दिया है, और जब मैं वापस करूंगा मेरे को जीएसटी भी रिफंड होगा. अगर मैं हाफ गुड्स करूंगा मेरे को हाफ जीएसटी रिफंड हो जाएगा, मीन्स मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा उसका. मीन्स मेरे वो अकाउंट में से अपने आप वो मेरा जीएसटी जो है वो कम हो जाएगा. तो जब मैंने गुड्स परचेज करी थी तब मैंने जीएसटी डेबिट किया था या क्रेडिट किया था? तब मैंने जीएसटी क्या किया था या क्रेडिट किया था? डेबिट. रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं जीएसटी क्रेडिट करूंगा, बट इट डजंट मीन कि मैं आउटपुट जीएसटी क्रेडिट करूंगा. मैं इनपुट ही क्रेडिट करूंगा टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट. जब रिटर्न्स करनी है तो सेम जो जीएसटी है वो आपने क्रेडिट करना है. ये यहाँ ये नहीं करना कि जो क्रेडिट कर रहे हैं वो आउटपुट जीएसटी होगा. भाई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, मतलब परचेज के लिए अगर आप डेबिट कर रहे हो तो भी इनपुट जीएसटी है, अगर आप क्रेडिट कर रहे हो रिटर्न्स के लिए तो भी इनपुट जीएसटी ही रहेगा. एंट्री सिंपल थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, साथ में टू इनपुट जीएसटी, बिकॉज पहले हमने जीएसटी डेबिट किया था. अब जब रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा जीएसटी कम होगा, क्रेडिट कर देंगे उसको. एंट्री जो जितने की अमाउंट होगी वो परचेज रिटर्न में आएगी. सपोज रुपीज 10,000 जो सेल प्राइस होगा या परचेज प्राइस होगा वो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा. जीएसटी की अमाउंट को हम यहाँ डालेंगे. सपोज अगेन द जीएसटी रेट इज 12%, वो 1200 बना, इसका हाफ हाफ करके 600 रुपीज जो है वो सीजीएसटी में और 600 एसजीएसटी में आएंगे, एंड टोटल अमाउंट आपकी 11,200 इधर आ जाएगी. फाइन. आई होप आई एम क्लियर. ये एंट्री लिख लीजिए, और साथ में एक और एंट्री सेल रिटर्न की, फॉर गुड्स रिटर्न्ड, फॉर सेल रिटर्न ऐसे लिख लीजिए, फॉर सेल रिटर्न या गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर. यस जैस्मिन, मेरे को सिंपल एंट्री बताना बेटा, गुड्स रिटर्न्ड की क्या होती है, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर की सिंपल एंट्री क्या होती है? So sale return account debit to cash. सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू कैश या डेटर, assuming that the goods have been sold on credit, हम उसकी एंट्री करते हैं। और जो जीएसटी था जब हमने सेल करी, ये सेल रिटर्न है। जब जीएसटी सेल के टाइम पे था तो वो कौन सा जीएसटी खुला था, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। तो जब सेल रिटर्न होगी तब भी आउटपुट ही खोला जाएगा। बस डिफरेंस ये है कि वहां हमने पहले आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट किया होगा, यहाँ पे सेल रिटर्न के साथ हम उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सपोज जो गुड्स हैं वो 1000 रुपीज की हैं जो सेल रिटर्न हो रही है, तो सेल रिटर्न में 1000 रुपीज आएंगे जो गुड्स की सेल प्राइस थी वो। अगेन द रेट ऑफ जीएसटी इज सपोज 12%, 12% यहाँ पे आएगा कंबाइंड, वो निकला आपका 120, इसको हाफ हाफ कर देंगे, 60 इसके और 60 इसके, 1120 जो है आपके वो डेटर्स अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी मेन एंट्रीज है। इसके बाद एक एंट्री और होती है जब जीएसटी जो है वो बैंक में गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, उसकी एंट्री हम सम के साथ करेंगे। एक दो एंट्रीज और लिख ही लीजिए, एक आध एंट्री और भी लिख लीजिए, है एंट्री कभी। एक है ड्राइंग्स इन गुड्स, ड्राइंग्स इन गुड्स, सिंपल एंट्री क्या होती है ड्राइंग्स इन गुड्स की, गुड्स विद ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसकी सिंपल एंट्री क्या होती है, 1 2 out of 42 7 persons know, 7 students know out of 42, वेरी गुड, 14 हो गया। यस सिमरनजीत। Sir, drawings account debit to purchase account. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अगर ड्राइंग्स कैश में की गई तो टू कैश, अगर चेक से की गई तो बैंक, अगर गुड्स से की गई है तो टू परचेज। अब यहाँ पे हमारा स्कोप परचेज पे है बिकॉज गुड्स पे ही जीएसटी लगना है, कैश पे चेक पे नहीं है। तो एंट्री आपकी सिंपल बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज, और साथ में टू बट टू विल टेल जीएसटी Input CGST account to import SGST account. Input. परचेज के लिए इनपुट जीएसटी ही खोलना है, चाहे परचेज डेबिट हो रही हो चाहे परचेज क्रेडिट हो रही हो, और परचेज रिटर्न भी टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। जो ड्राइंग्स की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी परचेज में, सपोज रुपीज 10,000, अगेन जीएसटी रेडी सपोज 12%, 12% इन दोनों में 1200, 600 इधर 600 इधर एंड 11,200 आपका आ जाएगा बैंक, सॉरी ड्राइंग्स में। डन। इफ सपोज goods have been given as charity, then what entry can be there, goods given as charity or donation? Manya? Charity account to purchase account to input CGST to input SGST. चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट, जो वर्ड वहां पे सब में यूज किया हो, टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। सेम एंट्री जो ये बनी हुई है, ड्राइंग्स वर्ड आपने ये काट के यहाँ पे चैरिटी वर्ड या आपने डोनेशन वर्ड लिख देना है। अगर वहां पे फ्री सैंपल्स के लिए एंट्री पूछी हुई हो तो फ्री सैंपल वर्ड या एडवर्टाइजमेंट वर्ड यूज कर देना है। अदर एस्पेक्ट्स विल रिमेन सेम एंड कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी विल रिमेन सेम, एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएसटी या वाइल पासिंग एंट्री ये जरूर चेक कर लेना इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है। ये मैं एग्जांपल इंट्रास्टेट की ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे इंटरस्टेट होती तो हम इसको कंबाइन करके हम अकाउंट खोलते टू इनपुट आईजीएसटी और रुपीज 1200 जो है वो आते अमाउंट है। ठीक है,
suppose I purchase the goods of rupees 10,000 and paid GST at the rate 12%. Input CGST debit, input SGST debit. Suppose to cash 11,200, and then I sold the goods. Say cash account debit to sales account to output CGST account to output SGST account. Suppose the sale was for rupees 20,000, 12% GST and 22,400 is the total amount. Now, because it becomes the responsibility of the supplier of the goods, seller of the goods, to deposit the GST in government's account. ऐसे ही है, ये हम लोग डिस्कस किया था। लेकिन जीएसटी कितना उसने डिपॉजिट करना है, जितना कलेक्ट किया हो। उसने कलेक्ट कितना किया है, उसने कलेक्ट किया है 1200 आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट किया, 1200 उसने एसजीएसटी कलेक्ट किया। बट द पॉइंट इज उसने जो कलेक्ट किया है वो 2400 है। अगर वो 2400 पूरा डिपॉजिट कर दे गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो क्या होगा, जब उसने ये गुड्स परचेज करी थी तब उसने 1200 रुपीज जो थे वो जीएसटी के पहले ही पे कर दिए थे, पे किए थे। जब उसने गुड्स परचेज करी, he has paid expenses and डेबिट किए हुए, he has paid rupees 1200 GST, and now because he has collected 2400 rupees GST, it doesn't mean that he will deposit 2400. He will deduct the amount of input CGST and SGST from output CGST and SGST and will deposit the balance amount. अगर otherwise क्या होगा, 2400 वो ये डिपॉजिट कर दे और 1200 ये वो डिपॉजिट कर दे, तो उसका 3600 बन जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि 2400 डिपॉजिट होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो उसने इसमें से पहले डिपॉजिट किए हुए हैं वो माइनस कर देगा और बाकी का वो डिपॉजिट करेगा। क्लियर? जब ये बात क्लियर है आई थिंक, तो जब वो माइनस करेगा, माइनस करने की भी एंट्री पास करनी पड़ती है, हम इसका आउट जो है वो इफेक्ट इसका नील करना पड़ेगा। हमने इनपुट जीएसटी क्या किया था, डेबिट, और आउटपुट क्या किया था, क्रेडिट। जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो इनको रिवर्स करेंगे। इनको रिवर्स करेंगे मतलब जो पहले क्रेडिट किए थे उनको डेबिट कर देंगे, जो पहले डेबिट किए थे उनको क्रेडिट कर देंगे। एंट्री आपकी बन जाएगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1200, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1200। जो क्रेडिट किए थे वो डेबिट हो गए, तो जो डेबिट किए थे इनपुट वाले वो क्रेडिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी 600 and 600 टू बैंक 1200। ये एंट्री आपके पास होगी। और डिपॉजिट ऑफ सीजीएसटी, जो क्रेडिट किए थे जीएसटी दोनों वो डेबिट कर दिए गए, जो डेबिट किए थे वो क्रेडिट कर दिए गए। डिफरेंस आपका जो है वो आप पे करोगे। आप देखो डिफरेंस, डेबिट साइड पे टोटल आ रहा है 2400 जो पहले पे किया हुआ था, क्रेडिट आपका आ रहा था 1200 जो पहले हमने पे की, ये पहले रिसीव किया हुआ था, ये पहले पे किया हुआ था। डिफरेंस आपका अपने आप 1200 रुपीज आ गया, मीन्स अपने आप को सेट ऑफ हो गया। सेटअप होना मीन्स अपने एडजस्ट हो जाना। आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी जो है वो एडजस्ट हो गए आपस में। डिफरेंस हमने जो था वो हमने पे कर दिया टू द गवर्नमेंट अकाउंट। डिफरेंस आपका टू बैंक अपने आप उतना ही आएगा, आप चेक कर दो। 2400 रिसीव था जीएसटी, कलेक्टेड 1200 पेड था, माइनस किया तो 1200 आ गया। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट है जीएसटी पे करने का। एट द एंड आपने सारी जीएसटी जो आउटपुट वाले हैं वो रिवर्स करके डेबिट कर देने हैं, इनपुट वाले जो हैं वो रिवर्स करके क्रेडिट कर देने हैं। डिफरेंस आपका टू बैंक में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली आपने सिंपल एंट्रीज करनी है सारी। जीएसटी की हार्ड कैलकुलेशन वाली एंट्रीज जो है वो जीएसटी की नहीं करनी है। इट हैज बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस कि जीएसटी की कैलकुलेशन और एंट्री सिंपल आएंगी। ठीक है, तो जितने हमने ये 5 इलस्ट्रेशंस को, जितनी हमने एंट्रीज यहाँ खुद करी हैं या जो कैलकुलेशंस की हुई हैं उसमें से ही एंट्रीज हैं जो आनी है।
आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, और जीएसटी की स्लैब्स याद रखना, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, एनी स्लैब कैन बी देयर। ठीक है, वो अपने उसके हिसाब से ही हाफ वगैरह करके, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी हो या फिर उसको सेम रख के अगर आईजीएसटी हो इंट्रा स्टेट से, वो कैलकुलेशन आपने करनी। यस केतन।